Hello, friends. Welcome to the channel Social Science with Dipankar. Today, we are going to discuss the chapter Electoral Politics from your Democratic Politics book. So, let us start. In this chapter, we are going to cover what is election, why do we need elections, and what are the powers and functions of election commission. And we will also try to understand the system of election in our country. We will also discuss in the end what are the challenges to free and fair election. तो दोस्तों आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आपके डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बुक से। और चैप्टर की शुरुआत जो होती है एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट से होती है। इस न्यूज़पेपर रिपोर्ट में असेंबली इलेक्शंस की बात के बारे में चर्चा की गई है। स्टेट यहाँ पर जो रूल था वो कांग्रेस का रूल था since 1982. The state had been ruled by Congress since 1982. Okay, and that time the opposition leader was Chaudhry Devilal, who had actually started a Nyaya Yuddha. He gave a slogan Nyaya Yuddha and formed a new party, Lokdal. Lokdal and its partners got 76 out of 90 assembly seats, and Lokdal alone won 60 seats. So thus, eventually, the Lokdal, along with its partners, formed the government. Though the majority number was only 46, any party winning 40 seats would have got majority. But it was a thumping majority for the Lokdal. Lokdal had won the election, and along with its partners, the total numbers were 76. Congress could win only 5 seats. And you see that, this is just to understand that, how during election time leaders remain from all parties, they remain busy. They meet the people, they do many public meetings, they make many promises. So election time is a time which is a period of intense activity. Lot of hurried activity happens. I mean, in our country especially, elections are treated as festivals. So a lot of activities take place during the election time. Different political parties, their leaders, they might approach you, they come to you to win your support, to win your votes. And whichever party people think that they would bring about some changes for them, for the state, they would vote for that particular party. So in this, we will know one thing very clearly, that in this particular state, Haryana, people were not happy with Congress. And Chaudhry Devilal, who had formed a new party, Lokdal, people saw in it a good alternative. That alternative which will be providing better services to people and which will be doing a lot of work for the welfare of the state. Chaudhry Devilal had promised to the farmers that once he comes to power, he will waive off the farmer loans. And as he had promised after forming the government, he had waived off the loans also. And in the next election, we see that how Chaudhry Devilal's party Lokdal could not win the popular support, and Congress, forms a government. Okay, so in all this, we understand that people, if they are not happy, they can change the government, and they will be able to do so only through elections. So through this newspaper report only, we will try to understand what is an election and
Why do we need it? So let us first understand what is an election. Election is a mechanism by which people can choose their representatives at regular intervals and change them if they wish to do so. This is exactly what we have seen in case of Haryana assembly elections. People were not happy with the Congress government, so they decided to vote for Lokdal, and Lokdal had been able to win the form the government. They had been able to win the majority, and they have been able to form the government. Okay, so in an election, voters make many choices. First, they can choose who will make laws for them. So people electing their representatives, they're actually legislators. So they'll be playing the role in making the laws. And then they can also choose who will form the government. So people, whichever party they will vote for, if that party or that alliance wins majority, more than half the number of seats of the total number of assembly seats, like in case of Haryana, the total number of assembly seats were how many? 90 seats were there. So any party or alliance winning 46 seats would mean that it it would get majority, and thus it would be able to form the government. Clear? And election also offers them a choice to choose the parties whose policies will guide the government and lawmaking. We know that there are people, there are different groups, those who might support any particular party's ideology, and every political party in the country may have their own ideology, may have their own priorities. So whichever party you think as a voter that this particular party's priorities are good for the nation or good for the state, so you will vote for that party. So election also enables citizens to vote for that party whose policies or whose ideologies you think are favorable for the development of the of any particular state, or it may be favorable for the entire country if it is a general election for the entire country. Okay, friends. Now let us move to the next slide. Why do we need elections? See, we have to understand this situation with some examples. Suppose if we imagine a democracy without elections, right? तो एक जो लोगों का जो रूल है वो पॉसिबल है विदाउट एनी इलेक्शंस, अगर सभी लोग एक साथ एक जगह रोजाना बैठ पाते और सभी डिसीजंस लेते। किंतु हम सभी जानते हैं, जैसे हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है, कि ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी भी लार्ज कम्युनिटी में, और ना ही सब लोगों के पास इतना समय है या नॉलेज है कि वो डिसीजंस लें सभी मामलों पर। ना उनको ऐसा इंटरेस्ट हो सकता है, शायद आपको इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, मुझे ना हो इंटरेस्ट, या मुझे इंटरेस्ट है किसी और को इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि लोगों के पास ना नॉलेज है, नॉलेज रिक्वायर्ड नॉलेज होगा, ना स्किल होगा, ना टाइम होगा, सभी के पास बराबर रूप से नहीं होगी। और सभी का एक साथ बैठना, एक समय पे बैठना, अगर एक छोटी सी कम्युनिटी है तो दे कैन टेक द डिसीजंस बाय सिटिंग एट वन प्लेस, all of the people they can sit together and they can take decisions, and they can meet every day also on major decisions. But it is not possible in a country like ours, right, which is a huge country with huge population. Okay, so larger societies wherein we have only the system of representative democracy. So we elect our representatives and they on our behalf, they take decisions, they rule through actually it is the people only who rule through representatives. So अगर हम सोचे कि अगर कोई डेमोक्रेटिक तरीका है रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का बिना इलेक्शन का, तो फिर हम ये मानते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव को उनके एज के आधार पर या एक्सपीरियंस के आधार पर उनको अगर चुने, एजुकेशन के आधार पर, नॉलेज के आधार पर, तो इसमें भी कुछ डिफिकल्टी हमें देखने को मिलती है। जैसे हम बात करते हैं कि कौन ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है या कौन ज़्यादा नॉलेजेबल है, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होगा। मान लीजिए कि
लोग ये प्रॉब्लम भी अगर सॉल्व कर देते हैं, तो इस प्रॉब्लम में भी अ, अगर ऐसी लोग मानते हैं कि आपस में ही अगर वो मिलके ये तय कर लेते हैं कौन ज़्यादा नॉलेजेबल है या कौन ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो ऐसे यहाँ पे भी कोई इलेक्शंस की ज़रूरत शायद ना हो, राइट? लेकिन अगर इलेक्शंस ही ना कराएँ, तो क्या हम ऐसे जगह को डेमोक्रेसी कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात ये है कि कैसे हम पता करें कि लोगों को जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को लोगों ने चुना है, वो यानी कि लोग जिनको चुन रहे हैं, क्या लोग उनसे खुश हैं? क्या लोग उनको पसंद कर रहे हैं? कैसे हम पता लगाएँ? बिना इलेक्शंस के तो ये पॉसिबल नहीं है। और ये भी कैसे पता लगाएँ कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के भेजा जाए, वो लोगों की इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? लोगों की इच्छाओं के अनुसार, विशेज़ के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो ऐसे में आप ये देखिए कि इलेक्शंस कैसे ज़रूरी हो जाता है और कैसे हम ये श्योर करें कि जिनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, वो पावर में ना रहें और जिनको वो पसंद करते हैं, वो पावर में रहें। तो ऐसे में एक ऐसे मैकेनिज़्म की ज़रूरत है, जिसमें लोग जो है रेगुलर इंटरवल पे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि लोग रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शंस वो करें। रेगुलर इंटरवल्स का मतलब कहीं अगर मान लीजिए हर 5 साल में, ऐसा नहीं है कि एक बार इलेक्शन हुआ तो उसके बाद इलेक्शन नहीं हुआ, इरेगुलर तरीके से ना हो। उसमें रेगुलर इलेक्शंस होना ज़रूरी है। लाइक वी टॉक अबाउट द जनरल इलेक्शंस दैट हैपेंस एवरी 5 years, राइट? Like in case of Lok Sabha elections also we see an MP is elected for 5 years. After the 5 years completed, then uh, the new dates for elections are announced, and then people again go out to cast their votes. Okay, so these are the arguments that are given there. I have already discussed with you. Everyone does not have the time nor the knowledge to take decisions on all matters. Without elections, it will not be found out if people like their representatives or not. Without elections, also, it is not possible to ensure that these representatives rule as per the wishes of people. जो अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, और ये श्योर करने के लिए कि दोज हु द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ऐसे में इलेक्शंस की ज़रूरत होती है। और इलेक्शंस हमने जैसे बताया, अभी पिछले स्लाइड में ही हमने ये डिस्कस किया कि वो मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए जो है लोग उनको चुनते हैं, रेगुलर इंटरवल पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और चाहें तो लोग उनको बदल सकते हैं। तो लोगों के पास चॉइस इलेक्शन के थ्रू ही मिलते हैं। और हमने जो चॉइसेस लोगों को अवेलेबल होती है वो भी पिछले स्लाइड में डिस्कस किया। इसके बाद अगले स्लाइड में हम बढ़ते हैं। यस, दिस इज अ स्लाइड दैट वी हैव टू डिस्कस व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। इसमें हम देखते हैं कि कौन सी वो कंडीशंस हैं जो इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती है। सबसे पहला कंडीशन दिया हुआ है, फर्स्ट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। इसका अर्थ ये है कि सभी जो भी नागरिक हैं, जो भी सिटीजन्स हैं, जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं, उन सभी का एक वोट होना चाहिए। हर एक पर्सन का अपना-अपना एक-एक वोट होना चाहिए और जो उनकी वैल्यू है, वोट की वैल्यू, ऐसा नहीं है कि मेन की वोट की वैल्यू ज़्यादा है, वुमेन की वोट की वैल्यू कम है, एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों की वोट वैल्यू ज़्यादा है और एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों की वोट वैल्यू कम है। तो नॉर्मली इस तरह का सिचुएशन एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में भी बन सकती है, या कहीं पे भी अगर ऐसा होता है तो वो आप ये कह सकते हैं कि इलेक्शन जो है वो सही तरीका नहीं है, राइट? तो इलेक्शन का मतलब ये है कि वन पर्सन, वन वोट एंड वन वैल्यू। The second point is there should be some meaningful choice. It means that there should be something to choose from. The voters should find that the candidates are significantly different from one another. Like if you go to market to purchase some apples, so you would find or look for the best of apples, right? What if suppose if all the apples are rotten, then in that case you would not uh, find it worth purchasing,
Okay, the same is the case with elections also. There should be candidates, good candidates. There should be some meaningful choice. Otherwise, there is no point casting votes. Or if all the candidates, those who are contesting elections, they all are equally tainted, or they all are, I mean, they're not different from one another. So the candidate has to be different from the others, and they should be honest. They should be um, such people who are committed, and those people, people uh, should have a trust in them. They should be trustworthy, and they should be at the same time, be in a situation to win the support of people. Good people should be there. That means, in a way, we are trying to say there should be good people, and good people can be, people will have then, something meaningful to choose from, right? The next point is, elections must be held at regular intervals. Now, this is quite clear that, elections should be conducted after every few years. Say in our country, as I given you the example, that elections for the Lok Sabha elections happens every 5 years. State assembly elections also happen every 5 years. Got it? So there should not be any obstruction. There should be, elections should be regular. It should be conducted at regular intervals. Okay. Next point is, the candidate preferred by the people should get elected. So this is, uh, we would say that, sometimes the candidates with some criminal connections, or some with more money and muscle power, they might, throw others out of the electoral race. So that should not happen. Only that candidate which is preferred, which is liked by the people, should get elected. Fifth one, elections should be conducted in a free and fair manner. It means that, there should be an independent body to conduct the election, and it should be done in a transparent manner. All decisions regarding the elections, or I can give you the example, like counting of votes, right, which is a very crucial phase of the election. So that should be there out in the open. When the counting is going on, that time leaders from, or their representatives, representatives from different political parties should be sitting there, and in front of them only the vote should be counted, the EVM should be opened, and vote should be counted uh, in front of them only. Okay, so there should be transparency, and there should be an independent body to conduct election. So all these features make election democratic. All right, children, I would request every one of you to just pay attention to whatever is being discussed. I will provide you the notes. The link will be provided in the description, so you can later on note down the important points. From there only, the link in which I'll be providing you, I'll be sharing you all the important notes. ओके, तो ऐसी कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप बड़े ध्यान से सुनिए, और ध्यान से सुनना बड़ा जरूरी है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है। और इसमें आपको जो है कमेंट्स आपको देना है, कोई भी अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसको शेयर करना है, लाइक करना है, लेकिन कहीं पे भी आपको लगता है कि कोई डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप जरूर कमेंट्स भी दे सकते हैं। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। डीमेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन। जब भी इलेक्शंस होते हैं तो आप ये देखते हैं कि उसके दो पहलू होते हैं, इसके डीमेरिट्स भी है। सबसे पहला डीमेरिट्स पे हम डिस्कस करेंगे, इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। जब भी इलेक्शन का टाइम आता है या इलेक्शन के पीरियड के दौरान हमें ये देखने को मिलता है कि लोग अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाते हैं। कोई किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करने वाला है, कोई किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करने वाला। इस तरह से ग्रुपिज्म हो जाता है, गुटबाजी बनने लगती है। तो कई बार ये हिंसा का भी रूप ले लेती है, वायलेंस का भी रूप लेती है। हमने कई स्टेट के रिपोर्ट्स हमें मिलते हैं, तो उसमें हमने ये देखा है कि किस तरह से एक पार्टी के सपोर्टर दूसरे पार्टी के सपोर्टर के आमने सामने आ जाते हैं, और कई बार इसमें हिंसक भिड़न भी होती है। तो पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी सोसाइटी पार्टी अपने अपने पार्टी में जिन जिन पार्टी को लोग सपोर्ट करते हैं, उन उन पार्टी की तरफ वो चले जाते हैं, और एक तरह से एक डिवीजन पैदा हो जाता है सोसाइटी में, फैक्शनलिज्म पैदा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट वन अनदर।
तो ये भी एक आम देखने को आम बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स अक्सर जो है एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं। तो ये भी एक डीमेरिट्स में है। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। तो हम अक्सर देखते हैं कि इलेक्शंस में मेन जो पर्पस रह जाता है कि किसी भी तरीके से हमें सत्ता में आना है, तो ऐसे में वो डर्टी ट्रिक्स अपनाने लगते हैं। पार्टीज अलग अलग पार्टीज या कैंडिडेट्स वो कई बार इन्वॉल्व हो जाते हैं ऐसे अनफेयर टैक्टिक्स को अपनाने से, ताकि वो इलेक्शन जीत जाए। अगला पॉइंट है, द प्रेशर टू विन इलेक्शन डज नॉट अलाउ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी formulated. This is very important point. You have to understand that to win elections, political leaders and political parties, they often make such kind of promises to people that and they focus on short term goals, right? So it is because of you know this reason only that their primary motive remains that they have to win the election. So they focus more on short term goals, and this results in the loss of some long term policies that are supposed to be formulated, that are good for the nation or for the state. तो कई बार जो है शॉर्ट टर्म यानी कि शॉर्टकट अपनाते हैं, और जो भी जिसी तरीके से जो है साम दाम दाम दंड भेद से जो है कैसे भी करके इलेक्शन जीतना है, तो वो इस तरह के शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर ध्यान देते हैं, और बजाय इसके कि कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के ऊपर ध्यान दें। जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है अक्सर ये जो इलेक्शन जीतने का जो प्रेशर है, उससे जो है उसकी वजह से जो है लॉन्ग टर्म पॉलिसीज भी जो है वो लागू नहीं हो पाते या उस पे काम नहीं हो पाता है। गुड पीपल मे नॉट एंटर पॉलिटिक्स ड्यू टू अनहेल्दी कॉम्पिटिशन। जो अच्छे लोग हैं वो हमेशा ये सोचते रहते होंगे कि पॉलिटिक्स जो है वो एक डर्टी गेम है, या इसमें किसी तरह से हमें एंटर नहीं करना है, क्योंकि दे डोंट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू अनहेल्दी पॉलिटिक्स। ओके, next slide we move. In this next slide we are going to discuss merits of political competition. ऐसा नहीं है कि political competition का कोई merits नहीं है या उसके कोई positive points नहीं है। हमारे जो constitution makers हैं उन्होंने इस बात को समझा है कि ये जो system of electoral competition है, it works better in the long run. long run कैसे है कि मान लीजिए अगर आप ये देखें कि कोई भी कैंडिडेट अगर गलत कैंडिडेट भी चुन के आ जाता है, ओके, तो हो सकता है वो एक बार चुन के आ जाए, लोग 5 साल के लिए परेशान रहे। लेकिन आप ये देखिए कि 5 साल बाद आपको फिर मौका मिलता है कि आप उस कैंडिडेट को ना चुने या उस कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दें। ओके, तो लॉन्ग रन में ये सोचा जाएगा कि नहीं, अगर हमें पावर में बने रहना है, अगर हमें लोगों की सेवा करनी है लंबे समय तक, तो इलेक्शंस ही वो जरिया है जिसके जरिए जो है लोगों के ऊपर एक प्रेशर रहेगा, जो कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर भी प्रेशर रहेगा कि दे हैव टू वर्क फॉर द पीपल। तो यहाँ पे एक चीज और है कि लाइक अदर प्रोफेशनल्स, पॉलिटिकल लीडर्स आर मोटिवेटेड बाय द डिजायर टू एडवांस देयर पॉलिटिकल करियर। इस पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से हर इंसान का अपना या हर प्रोफेशनल का अपना एक एम्बिशन होता है कि वो एक अच्छा प्रोफेशनल बने, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर, इसी तरीके से लीडर्स भी चाहते होंगे कि वो अपना पॉलिटिकल करियर को एडवांस करें, राइट? तो ऐसे में आप ये देखिए कि फिर भी ये बहुत रिस्की होगा कि हम उनके अच्छे इंटेंशंस के ऊपर ही भरोसा करें, और उनके ऊपर ही जो है सारी बात छोड़ दें कि नहीं ये तो अच्छा ही करेंगे करके। तो इलेक्शन जो है ये चीज़ इंश्योर करती है कि भले ही आपका मोटिव जो है पावर में बने रहना है या अपना फ़ायदा करना है, लेकिन इसके बावजूद भी आप जो है इलेक्शन की वजह से ही लोगों के लिए काम करेंगे, अदरवाइज़ आप लोगों के लिए काम नहीं करेंगे। अगर ऐसा कोई अगर इलेक्शंस हैं तभी इसका मतलब कि जो कैंडिडेट्स हम चुन रहे हैं वो लोगों के लिए काम करने के लिए वो बाध्य होंगे। ओके, so political competition is a system wherein political leaders are rewarded for serving the people and punished for not doing so. So this is quite clearly understandable that political competition
provides us that opportunity, right, to the people, that they can punish those candidates who haven't worked for the people, and they can re-elect the candidate if they have done good for them or good for the society. Okay. And regular electoral competition provides incentives to political parties and leaders. ये जो रेगुलर आफ्टर एवरी फ्यू इयर्स जो इलेक्शंस रेगुलरली जो कराया जाता है, तो इससे आप ये देखेंगे कि किस तरह से जो कैंडिडेट या जो पार्टी लगातार इलेक्शंस जीतती रहती है, तो उनकी पॉपुलैरिटी, ये आप कह सकते हैं, इसको पॉपुलैरिटी से जोड़ के देख सकते हैं कि उस पार्टी का सपोर्ट बेस बढ़ रहा है या उस कैंडिडेट का सपोर्ट बेस बढ़ रहा है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, और पार्टी के अंदर भी उस कैंडिडेट का स्टेचर भी बढ़ता है। ओके। तो इंसेंटिव्स कहने का मतलब है उनको उसका इनाम मिलता है कि हमने अच्छा काम किया है, तभी हमें लोगों ने फिर से चुन के भेजा है। पॉलिटिकल कंपटीशन फोर्सेस पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स टू सर्व द पीपल। ये बिल्कुल मार्केट सिचुएशन की तरह है। भले ही एक मार्केट में शॉपकीपर, आप ये देखें कि अपने फायदे के लिए वो देखता है, वो अपना पर्सनल प्रॉफिट देखता है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर उनको लंबे समय तक मार्केट में बने रहना है, रेस में बने रहना है, तो उनको लोगों को अच्छा सर्व करना ही पड़ेगा, अच्छे प्रोडक्ट्स रखने ही पड़ेंगे अपने शॉप में। ठीक उसी तरीके से भले ही पॉलिटिकल लीडर अपने कोई पर्सनल उनका कुछ भी मोटिव हो, अपने फायदे की हो, लेकिन साथ ही साथ उनको ये भी ध्यान रखना होगा कि उनको लोगों के लिए काम करना है, सोसाइटी के लिए काम करना है, और इलेक्शन इस बात को एंश्योर कराती है। ओके। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल कंपटीशन कितना इंपॉर्टेंट है। अगले स्लाइड में जाते हैं दोस्तों। व्हाट इज आवर इंडियन सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। सबसे पहले जो है पूरी कंट्री को जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है, राइट। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस, और हर एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। इसमें अक्सर ये बात का ध्यान रखा जाता है, जब ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एरिया डिमार्केट होता है, तो पॉपुलेशन मोर और लेस सेम होना चाहिए। ओके। पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पर ही एरिया जो है उसको डिमार्केट किया जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं राजस्थान है, जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, तो आप ये देखिए कि नंबर ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी भी कम है। वहां पर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी आई थिंक 25 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। वही यूपी में आप देखिए कि पॉपुलेशन डेंसिटी भी हाई है। तो ऐसे में जो है पूरे यूपी का जो आपका जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, टोटल आपका 80 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। ओके। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पर ही एरिया तय होता है। हो सकता है कुछ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटे होंगे क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसे दिल्ली। ओके। दिल्ली में 7 लोकसभा सीट्स है, तो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है। वहीं दूसरी तरफ आप ये देखें कि अरुणाचल प्रदेश है, जो इतना बड़ा स्टेट होने के बाद भी वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी क्योंकि कम है, तो वहां पर सिर्फ आपके 2 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। ओके। दूसरा जो है इसमें सिस्टम है हमारे यहाँ पर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ये बिल्कुल अच्छी तरह से अच्छी भली भांति जानते थे कि जो हमारे वीकर सेक्शंस हैं उनके उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए सीट्स रिजर्व होना जरूरी है। तो उनके लिए जो है शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीट लोकसभा में रिजर्व है, और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 47 सीट्स रिजर्व है। अगला स्टेप इसमें है वोटर्स लिस्ट। तो जैसे ही एरिया डिमार्केट होता है, आफ्टर डिमार्केटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज, द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ एलिजिबल वोटर्स। दिस लिस्ट इज कॉल्ड इलेक्टोरल रोल और वोटर्स लिस्ट। इसको रिवाइज करना भी जरूरी होता है क्योंकि इसमें काफी चेंजेस आते रहते हैं। कुछ वोटर्स शिफ्ट हो जाते हैं या उनकी डेथ के बाद जो है, या आप देखिए कि कोई वोटर उसका जिनका नाम नहीं है उनका नेम जो है ऐड कराना, या जो लोग पास अवे कर चुके हैं तो उनका नेम हटाना। तो इस तरीके से जो है इसको अपडेट करना जरूरी हो जाता है। Nomination of candidates. Political parties nominate their candidates who get the party symbol and support. Every person wishing to contest election has to fill nomination form and give some money as security deposit. Election के लिए ये बहुत ही एक important part है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी होते हैं, उनको भी नॉमिनेशन करना होता है, लेकिन जो कैंडिडेट
पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से लड़ रहे होते हैं तो उनको जो नॉमिनेशन मिलता है तो जो उनको कहते हैं टिकट मिलना कहते हैं। तो टिकट मिलते हैं और जब एक नॉमिनेशन फॉर्म जो है उनको वो फिल करना होता है अम, और सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में उनको कुछ पैसे जमा करने होते हैं। इलेक्शन कैंपेन ये वो दौर होता है जैसे हमने शुरू में भी चर्चा की थी। ड्यूरिंग दिस 2 वीक कैंपेन पीरियड लीडर्स कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स, पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस इलेक्शन मीटिंग्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्टर। ये वो दौर है जब न्यूज़पेपर में इलेक्शन रिलेटेड न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। टेलीविज़न चैनल्स में हमको डिबेट सुनने को मिलते हैं जहाँ पर देयर आर स्पोक्सपर्सन्स फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दोज हु कम टू पुट फॉर्थ देयर पार्टीज व्यूज ऑन डिफरेंट मैटर्स। ओके, next slide. We are continuing with the Indian system of elections only. At the last stage, the polling, I mean, polling is the day when, which is also called the election day, when eligible voters they go to the polling booths to cast their votes. And once the polling is over, all EVMs are sealed and taken to a secure place on a fixed date. Later, all the EVMs are opened and votes secured by each candidate are counted. Okay. नेक्स्ट सेक्शन में हम इसको पढ़ते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। एक बार जब इलेक्शन अनाउंस हो जाती है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू एमसीसी, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, मतलब कोई पार्टी या कैंडिडेट ये नहीं कर सकती कि वो किसी प्लेस ऑफ वर्शिप को यूज करे फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, और या गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स और ऑफिशियल्स को वो इलेक्शन पर्पस के लिए यूज करे। और एक बार जब इलेक्शंस अनाउंस होती है तो मिनिस्टर्स शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट। कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया जाएगा, उसका फाउंडेशन स्टोन नहीं रखा जाएगा, या कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। मेक एनी प्रोमिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग एनी पब्लिक फैसिलिटी, इस तरह के प्रोमिसेस भी नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड वी मूव टू what makes elections in India democratic. Elections in India democratic. So we have certain reasons that with the help of which we can say, or we can prove the point that yes, elections in India are democratic. First reason is Independent Election Commission. In our country, elections are conducted by an independent and very powerful election commission. It enjoys the same kind of independence as judiciary. जैसे जुडिशरी के पास इतनी वाइड रेंजिंग पावर्स है, ऐसे ही इलेक्शन कमीशन के पास वाइड रेंजिंग पावर्स है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बट वंस अपॉइंटेड ही इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ द और द गवर्नमेंट। Very few election commissions in the world have such wide ranging powers as the election commission of India. तो आप ये देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हमारे देश में है जो इलेक्शन को कंडक्ट कराती है, और हर एक स्टेट का एक स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होता है। तो ये पूरी तरीके से स्वतंत्र है। और अगर बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स की, तो 3 लोग इसमें होते हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो जब भी इलेक्शन का, जैसे अगर हम बात करते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, तो गवर्नमेंट भी जो है वो उसके गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स होते हैं, दे वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, राइट। So we are here continuing with what makes elections in India democratic only. The popular participation. What it means, if अगर हम ये देखना चाहते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस फ्री है, फेयर है कि नहीं, तो अगर मान लीजिए इलेक्शन प्रोसेस फ्री या फेयर नहीं होती, तो people will not continue to participate in the exercise because people will lose faith. Okay, so they'll not definitely go out to vote if they feel that the elections are rigged, or forgery happens, or a lot of ill practices are taking place, or if they don't trust the election commission that it is a body that can conduct elections in a transparent manner, then in that case people may not show their faith, or people may not have any interest in casting votes. Since people in India we see the turnout percentage, turnout क्या होता है, जो
कितने व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्चुअल वोटर्स, जो एलिजिबल वोटर्स है जो वोट देने जाते हैं। तो हमारे कंट्री में ये बहुत अच्छी पॉइंट है कि अच्छी बात है कि जो वोटर टर्नआउट हमेशा या तो जितना पिछली बार रहा है एक अच्छा एक स्टेबल रहा है, और या ये हमेशा बढ़ा ही है। और कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू इलेक्शंस। ये भी बात देखने लायक है कि किस तरह से कॉमन लोगों को लगता है कि इलेक्शन के ज़रिए वो काफ़ी बड़ा एक प्रभाव डालते हैं देश की सरकार के ऊपर। उनका वोट मैटर करता है, इसलिए वो इलेक्शंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। The interest of voters in election related activities has been increasing over the years. अब यूँ कहिए कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो भी वोट देने की अपील लोगों को करते हैं, और कहीं न कहीं खुद वोट देकर भी वो दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो अपना जो राइट टू वोट है उसको एक्सरसाइज़ करें और इसमें प्राइड फ़ील करें। और इसमें इलेक्शन कमीशन का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है कि लोगों को जागरूक करने में, अपने वोट के प्रति, अपने इस अधिकार को यूज़ करने को लेकर। तो इसमें हम ये भी देखते हैं कि इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है। अगले सेक्शन में देखते हैं। जो लास्ट पॉइंट है, व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम्स। इसको आप ऐसे मान के चलिए जिस तरीके से मान लीजिए दो टीम के बीच में अगर कोई मैच होता है, जो हारने वाली टीम है वो जीतने वाली टीम को बधाई देता है। तो हमारे देश में जो है नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो भी डिफीटेड पार्टी है वो इलेक्शन आउटकम को एक लोगों का एक आदेश मानकर जो है वो इसको मानते हैं, और वो ये सोचते हैं कि जैसा भी जनता जनार्दन का आदेश है उसका उनको पालन करना होगा। और वो जो है आप ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर इलेक्शन हमारे कंट्री में फ्री और फेयर नहीं होता है, तो आउटकम जो है हमेशा वो जो पावरफुल है उनके फेवर में रहता है, या रूलिंग पार्टी है वो कभी हारती नहीं। जैसे हमने मेक्सिको में देखा कि वहाँ पर जो है हमेशा रूलिंग पार्टी ही जीतती आई है। ओके। जिम्बाब्वे में भी हमने देखा कि किस तरह से वहाँ के रॉबर्ट मुगाबे की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने किस तरह से इलेक्शंस को रिग किया और उन्हीं की सरकार बनती आई थी। तो ऐसे में आप ये देखेंगे कि जो इलेक्शन का जो आउटकम है, वो भी इस बात को तय करती है कि इलेक्शन फ्री है या फेयर, फ्री है कि नहीं है, या फेयर है कि नहीं है। ओके। So as far as our countries or India's elections, if we talk about the outcome of India's elections speaks for itself. As a ruling parties often lose elections, about half of the sitting MPs और MLAs lose elections. तो हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है कि हमेशा रूलिंग पार्टी जीतती है, या अक्सर ये देखने को मिलता है कि सिटिंग MP, सिटिंग MLA हार जाते हैं। और जो कैंडिडेट जिनका कोई भी क्रिमिनल कनेक्शंस रहते हैं, या मान लीजिए जिन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च किया है, पैसा बहुत माने वोट खरीदने में पैसा उन्होंने बहाया है, तो ऐसे में वो अक्सर इलेक्शंस हारते हुए देखे जाते हैं। और इलेक्शन रिजल्ट्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड एज पीपल, जो कि मैं पॉइंट शुरू में बता रहा था, इलेक्शन रिजल्ट्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड एज पीपल्स वर्डिक्ट बाय द defeated party in India. This is the picture of Election Commission of India building. So भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन का ये बिल्डिंग है, और इसमें हम पढ़ते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। EC takes decision on every aspect of conduct and control of elections from the announcement of elections to the declaration of results. तो इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त संस्था है। इनके पास पूरी राइट होती है और इलेक्शन को कंडक्ट कराने का, कंट्रोल करने का, शुरू से फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। दूसरी जो पॉइंट है, इट इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी हु वायलेट्स इट। तो एक कोड ऑफ कंडक्ट जो जिसके बारे में हमने पिछले स्लाइड्स में चर्चा भी की थी कि कोड ऑफ कंडक्ट का अगर वायलेशन कहीं होता है तो इलेक्शन कमीशन जो है इस बात को लेकर जो है अगर कहीं वायलेशन होता है तो उस कैंडिडेट को या उस पार्टी को पनिश भी करती है।
ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द ईसी कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस। तो कुछ गाइडलाइन जो है वो इलेक्शन कमीशन से दिए जाते हैं, उनको भी फॉलो करने का काम गवर्नमेंट को होता है। When when on election duty, government officers work under the control of EC and not the government. So this is very important for creating a level playing ground. Otherwise, what we see, ruling party may have undue advantages. Okay, and the opposition party, they may suffer from some disadvantages. To make sure that there should be a level playing ground, election commission, under which government officers work, so that no undue advantages are taken by the ruling party. Challenges to free and fair elections. तो जब हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करते हैं तो उसके सामने कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें आप ये देखें कि कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद लॉट ऑफ मनी डू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट्स। हम ये देखते हैं जो छोटे पार्टियां होती हैं या जो कैंडिडेट इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पार्टी के टिकट से नहीं लड़ रहे होते हैं, जो इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं, इलेक्शंस लड़ रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत डिसएडवांटेज होता है बनस्पत उनके जो कैंडिडेट जो होते हैं या पार्टीज होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा, वो एक अनफेयर एडवांटेज जो है वो ले सकते हैं या लेते हैं। बिग एडवांटेज उनके पास होता है क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं। तो कहीं ना कहीं मनी एंड मसल पावर को ये इंडिकेट कर रहा है। तो मनी एंड मसल पावर का, मसल पावर इसमें बाद में आएगी चर्चा में। यहाँ पे मनी पावर की अगर हम बात करें तो मनी पावर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को, ये भी एक चैलेंजेस है। तो इसमें आप ये देखेंगे कि कोई भी अगर ऐसे पर्सन जो है जो आपके लिए मनी को रेस कर सकता है, या मान लीजिए जो पार्टी को डोनेशंस करते हैं, तो उनको अक्सर ऐसा लगता है कि एक बार सरकार बनने के बाद वो सरकार हमारे खास ख्याल रखेगी। तो इस तरीके से उनका जो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस उस गवर्नमेंट के ऊपर देखने को भी मिल सकता है। In some parts of the country, candidates with criminal connections have been able to push others out of electoral race and secure ticket from major parties. So यहाँ पर मसल पावर की बात की गई है। जो लोग जो बाहुबली लोग होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं कि जो कॉमन कैंडिडेट या सिंपल कैंडिडेट्स हैं, जो साधारण कैंडिडेट्स हैं, उनको जो है इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन से बाहर कर देते हैं और इस तरह से टिकट पाने में, मेजर पार्टी से टिकट पाने में वो सफल हो जाते हैं। और लास्ट पॉइंट यहाँ पर है, सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज, टिकट्स आर गिवन टू फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स। तो इसमें हम ये देखते हैं कि ये डायनेस्टिक सक्सेशन या निपोटिज्म हम देखते हैं कि अक्सर पार्टी में जो कंट्रोल है कुछ पर्टिकुलर फैमिली का रहता है। हम यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेते। अक्सर इससे जो है ऑलमोस्ट सारी पार्टियां देश की अगर जो है किसी ना किसी फॉर्म में या किसी न किसी लेवल पे वो नेपोटिज्म का शिकार होती रही है। यानी कि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसमें अक्सर ये देखा जाता है कि फेवरेटिज्म किसके साथ फेवरेटिज्म किया जाता है, उनको फेवर किया जाता है जो अपने रिलेटिव्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, उनको जो है टिकट दिया जाता है। जो सामान्य जो कार्यकर्ता है पार्टी का, उसको अक्सर जो है दरकिनार करके ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है जो फैमिली से, किसी पर्टिकुलर फैमिली से रिलेटेड है और जिनका इन्फ्लुएंस उस पार्टी में है या उस पार्टी में जो है उस फैमिली का कंट्रोल है। ओके, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है फ्री और फेयर इलेक्शंस के सामने। इसमें कुछ पिक्चर्स दिखाए गए हैं दोस्तों। तो ये आपका यही चीज़ें इंडिकेट कर रही है जो हमने अभी डिस्कस किया। किस तरह से मनी पावर है, फिर किसी तरीके से जो है बाहुबलियों का भी जो है इसमें बहुत इन्फ्लुएंस देखा गया है। डायनेस्टिक सक्सेशन जो है, पपेट रूल, और इस तरह से आप ये देखोगे कि किस तरह से फैमिली मेंबर्स को ही ज़्यादा पार्टी किसी पर्टिकुलर फैमिली के फैमिली मेंबर्स को या रिलेटिव्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। अगले सेक्शन में हम पढ़ते हैं वैसे चैलेंजेस में ही कुछ पॉइंट्स यहाँ रह गए थे तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू
ordinary citizens, for there is hardly any difference between major parties in policies and practice. So we can see that there is hardly any difference between major parties. Like if we take the case of England, also there are two parties, Labour Party and Conservative Party, but both the parties on economic issues are almost same. And in our country also, the two major parties, Congress and BJP, we've seen that on major issues, their policies, I mean, their thinking or their priorities are same. So plus we also see that candidates, they leave their party and they join another party. So very often it is the same candidate who might be shifting from one party to the other. So hardly there is a meaningful choice, or parties, they need to be substantially different from the other parties to be able to provide an alternative to people. Okay, smaller parties and independents suffer huge disadvantage compared to bigger parties. So this is about the resources. I mean, the smaller parties or candidates, they might be plagued with limited resources. So they naturally have disadvantages compared to bigger parties. The bigger parties have more money, they have more resources, though they can, in a greater way, they can influence the public to win the support in their favor. Okay, and in the end, with a quote, I would like to end this video. Somewhere inside all of us is a power to change the world. So the right to vote is one of the most important rights to us. So we have to understand that how much crucial this right to vote is. Every one of us, with our vote, we can bring about a change in the society. So with this beautiful quote, I would like to end this explanation, and we'll meet you again. I'll meet you again to with another video, another interesting video. In the meanwhile, I request you all to like, share, subscribe, and also do see the link in which I will be providing you the material. I mean, the PDF that will be there, and you can note down the important points from there only. Okay, thank you for now. Thank you so much.